قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً اللہ کی طرف سے تمہاری پاس دو چیزیں آئی ہیں، ایک اللہ کا نور ہے اور ایک کھلی ہوئی کتاب۔ اسی آیے مبارکہ کو سامنے رکھ کر میں نے اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں عنوان کا اعلان کیا، کتاب اور عفت۔ کتاب و عفت کی ضرورت کیا ہے، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے مقصد تخلیق پر غور کرنا ہوگا۔ قرآن مجید نے آواز دی وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمان و زمین کو اور آسمان و زمین کے درمیان کی چیزوں کو کھیل تماشے کے لیے خلق نہیں کیا۔ قرآن نے دوسرے مقام پر اعلان کیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا گمان ناقص ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد خلق کیا، کھیل تماشے کے لیے خلق نہیں کیا، بے مقصد خلق نہیں کیا۔ اسی قرآن نے ہمیں سلوگن دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم پیدا ہوئے ہیں تو اللہ کے لیے اور ہم واپس جائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں۔ ظاہر ہے کہ یہ گفتگو تمہیدی ہے اور ہمیں اپنی تمہیدوں کو اس مرحلے پر رسوا کرنا ہے۔ ہم بے مقصد خلق نہیں ہوئے، ہماری تخلیق کا ایک مقصد ہے اور اس مقصد تخلیق کو پروردگار عالم نے بار بار قرآن مجید میں بتایا۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے آدم کے بیٹو، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ عجیب مرحلہ ہے، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تو عہد لیا ہوگا نا جب کہہ رہا بھائی، عہد تو لیا ہوگا نا جب تو کہہ رہا ہے کہ کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور فقط میری عبادت کرو گے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو عہد تو لیا تھا نا، لیکن یاد کسی کو نہیں ہے۔ تو جب اللہ کا لیے لیا ہوا عہد کسی کو یاد نہ ہو تو اگر رسول قدیر میں کوئی عہد کر لے، عہد لیا اور عہد لیا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، میری عبادت کرو گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آواز دی وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، فیصلہ کیا ہے اللہ نے، حتمی طور پر تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ لا تعبدوا الا اياه، کسی کی عبادت نہیں کرو گے، بس اللہ کی عبادت کرو گے۔ تو بھائی عجیب مرحلہ فکر یہ کہ پہلے یہ سمجھایا پوری انسانیت کو کہ تم بے مقصد خلق نہیں کیے گئے، اور پھر بتایا کہ تمہارا مقصد تخلیق عبادت ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ عبادت کون بتلائے؟ اللہ کبھی نہیں آیا بتانے کے لیے، اللہ کبھی نہیں آیا بتانے کے لیے، آیا بتانے کی عبادت کیسے کرو، عبادت کے اوقات کیا ہوں گے، کیسی عبادت کی جائے گی، کون لوگ عبادت میں مکلف ہوں گے، کون مکلف نہیں ہوں گے۔ بھائی عبادت کی کوئی بات اللہ نے بتلائی، آیا تمہارے پاس تمہارے محلے میں بتانے کے لیے؟ بھائی اگر وہ آ جائے تو وہ نہ رہے، ایسا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا، اگر وہ آ جائے تو وہ نہ رہے، اللہ نہ رہے، کہ اللہ آ نہیں سکتا۔ اچھا بھائی تو چلو اسے ہم چل کے پوچھیں کہ عبادت کیا ہے، کہ اگر ہم چلے جائیں تو ہم نہ رہیں۔ یہ بات تو واضح ہو گئی نا، ہم جسم کے قیدی، وہ لازمان لامکان، وہ آ نہیں سکتا، ہم جا نہیں سکتے۔ بہت سامنے کی بات کر رہا ہوں، وہ آ نہیں سکتا۔ اب یہ آ نہیں سکتا میری مجبوری ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے نا، ہر شے پہ قادر ہے، لیکن چونکہ جسم نہیں ہے آنا ممکن نہیں ہے۔ اچھا ہم چلے جائیں اس مقام تک تو ہمارے پرچے اڑ جائیں، سمجھتے کیا ہو؟ یہ معراج کوئی مذاق نہیں ہے، ہمارے پرچے اڑ جائیں، اگر ہم اس مقام تک جانے کی کوشش کریں تو وہ آ نہیں سکتا، ہم جا نہیں سکتے۔ تو ایک ایسے وجود کی ضرورت ہے جو ادھر چلے ادھر سے۔ دیکھو اب یہ وہ مرحلہ فکر ہے، کیسا مزاج؟ بھائی سامعین سے مزاج پوچھنا تو ضروری ہے، کیا کہہ رہا تھا اگر کوئی بتا دے؟ ایک ایسا وجود ضروری ہے جو ادھر سے لے ادھر دے، اگر ادھر دے تو ہم جیسا ہو، اگر ادھر لے تو جیسا ہو۔ دیکھو اس میں نہ کوئی منطق ہے نہ کوئی فلسفہ ہے۔ مجھے یاد ہے، ممکن ہے اجتماعی حافظہ کام نہ کر رہا ہو، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کئی سال پہلے میں نے ایک مثال دی تھی وسیلے پہ بات کرتے ہوئے، کئی سال پہلے جا کے میں نے کیا کہا کہ دیکھو دوسری منزل پہ تمہیں جانا ہے، ادھر سیڑھی ہے، زیرے پہ جاؤ گے نا، اس سیڑھی کو کراس کرو گے نا، اچھا بھائی تو سیڑھی کے لیے اب تمہیں جانا ہے چھت پر، جانا ہے تمہیں سیڑھی کے ذریعے، تو ایک طرف سیڑھی کے لیے لازم ہے کہ وہ زمین سے لگی ہوئی ہو، دوسری طرف لازم ہے کہ وہ چھت سے لگی ہوئی ہو۔ تو
ऐसा बंदा जरूरी है जो उधर भी मुत्तसिल हो इधर भी मुत्तसिल हो। भाई धोखा दोनों ने खाया, धोखा दोनों ने खाया। एक ऐसा वजूद जरूरी है जो उधर से भी लगा हुआ हो इधर से भी लगा हुआ हो। दोनों ने धोखा खाया। नुसैरी ने उधर से देखा, अपने जैसा समझा। कुछ और कहना चाह रहा था, और अगर ये जुमला पहुंच गया तो यहीं से फिक्र आगे बढ़ जाएगी। भाई अब जरूरी है कि उधर भी लगा हुआ हो इधर भी लगा हुआ हो। दो गरोह ऐसे हैं जिन्होंने धोखा खाया। नुसैरी ने उधर से देखा, अल्लाह जैसा समझा, और बुल्ला ने इधर से देखा, अपने जैसा समझा। कोई है ये उधर से लेता है इधर देता है, और जो देता है उसका नाम है कुरान। किताब जैसे मैं तुम्हारे महफूज में तभी उस बात कर रहा हूँ, उसका नाम है कुरान जो देता है। यानी अब कुरान समझ में आया, अल्फाज अल्लाह के लहजा मोहम्मद का। यानी इस जुमले की ताकत समझो, अल्फाज अल्लाह लहजा मेरे मोहम्मद का। यानी अजीब बात है, अजीब बात है। कहने लगा अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। देखो ईमान लाने वालों, तक़वा इख्तियार करो, जो हक है तक़वा इख्तियार करने का। आया कहने के लिए ईमान लाने वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इरकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सूरह हज 22वां सूरा। ईमान लाने वालों, रुकू करो, सजदा करो, इबादत करो अल्लाह की। आया कहने के लिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान लाने वालों, हमने तुम पर रोज़े को वाजिब किया। आया तुमसे कहने के लिए, भाई सवाल तो है ना भाई। ये सवाल, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी वला तजहरु लहु बिल क़ौल कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कितनी आयतें सुनाऊं। इत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, सादिक़ीन के साथ रहो। बार बार कहता है ऐ ईमान लाने वालों, ऐ ईमान लाने वालों। अल्लाह ने तुमसे कहा बराह रास्त आके नहीं, लफ्ज़ अल्लाह के हैं, लहजा मेरे मोहम्मद का है। समझ में आ रही है बात? नौजवानों तक मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूँ। लफ्ज़ अल्लाह के, जुमले अल्लाह के, एक एक हर्फ अल्लाह का, लहजा मेरे मोहम्मद का, गला मेरे मोहम्मद का। यानी अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह तुमसे जब कभी बात करता है तो मोहम्मद के लहजे में बात करता है। अल्लाह जब तुमसे कभी बात करता है तो मोहम्मद के लहजे में बात करता है। नमाज पढ़ो, लफ्ज़ अल्लाह के, लहजा मोहम्मद का। रोजा रखो, लफ्ज़ अल्लाह के, लहजा मोहम्मद का। हज करो, लिल्लाहि वन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, हमने हज को वाजिब कर दिया, लफ्ज़ अल्लाह के, लहजा मोहम्मद का। तो जो बात भी आई वो अल्लाह ने तुमसे बराह रास्त नहीं कही, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए गई। यही तो वसीला है। समझ गए बात वाज़ेह हो गई। तो अब ये जुमला तुम्हारे ज़हनों के अंदर महफूज हो जाए, तब ये दी और पहली तकरीर है कि लफ्ज़ अल्लाह के, लहजा मोहम्मद का। अल्लाह जब तुमसे बात करता है, तुमसे ठीक, तो किसके गले से बात करता है? मोहम्मद के लहजे, मोहम्मद के गले से। यही तो है ना। अब एक रात ऐसा हुआ कि अल्लाह ने अपने हबीब को बुलाया, और अब वहां कोई नहीं है, बड़े से बड़ा नहीं है, कोई बड़े से बड़ा नहीं है, अल्लाह है और मोहम्मद है। तो तुमसे बात की मोहम्मद के लहजे में, अब मोहम्मद से बात करे किसके लहजे में? अल्लाह ने तुमसे बात की मोहम्मद के लहजे में। भाई तवज्जुहात मत भूल रहे हैं। अब मोहम्मद से बात करें किसके लहजे में? अगर ये सवाल तुम्हारे ज़हनों में आए तो यही सवाल उस आयत के बुजुर्गों के दिमाग में भी था। मेराज के दूसरे दिन पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह हमसे बात करता है आपके लहजे में, आपसे बात की किसके लहजे में? मुस्कुरा के फरमाया कल्लमनी बिलहजति अली इब्न अबी तालिब। अब देखो मौजू के तकाज़ों को पूरा होना है। पहले ही दिन ये जुमला कर रहा हूँ मैं, ये जुमला पहले दिन कह रहा हूँ कि मौजू के तकाज़ों को पूरा होना है। तो अब यहाँ से मेरे साथ आगे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते चलो। अच्छा भाई, तो कुरान क्या है? लफ्ज़ अल्लाह के, सारे अल्फाज, सारे हुरूफ, सारी आयतें, सारे कलिमात अल्लाह के, लहजा मेरे मोहम्मद का। और अब कहने लगा वो अनदेखा खुदा, वो अनजाना खुदा, जिसे न छू सको, न टटोल सको, न सूंघ सको, ऐसे खुदा का ताल्लुक कराना है उन मुशरिकों के मुआशरे में जहाँ देखे हुए बुत रखे हुए थे। क्या कोई बात समझ में आ रही है? भाई नहीं, अगर समझ में आती तो अब नौजवानों के लिए जुमला कह रहा हूँ, अगर समझ में आती तो फिर मुझे कहने की जरूरत क्या है? ये जुमला सुनते जाओ और अब इस तरीके से सुनो जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे सुनो। देखो भाई, अब एक जुमला, अभी मैं वापस जाऊँगा, एक जुमला कह के आगे जाना चाहता हूँ। देखो रसूल ने क्या दावा किया कि मैं खुदा हूँ, मैं खुदा का रसूल, मैं खुदा नहीं हूँ। यानी अजीब बात है। और ये बात अगर तुम्हारी समझ में आ गई तो सिलसिले फिक्र जो है वो मुंतसिर हो जाएगा। ये नहीं कहा मैं खुदा हूँ, मैं खुदा का रसूल हूँ। यानी अजीब लोग थे कि मानने पे आए तो लकड़ी के तराशे हुए बुत को खुदा मान लिया, पत्थर से बुत तराशे उन्हें खुदा मान लिया, हलवे के बुत बनाए तारीफ में उन्हें खुदा मान लिया। तो हलवे के बुत, लकड़ी के बुत, पत्थर के बुत उन्हें खुदा मान रहे हैं। और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह जो इंसान है
पत्थर या लकड़ी नहीं है, वो कहते हैं कि खुदा नहीं, मुझे रसूल मान लो, नहीं मानते। है सोचने की बात, आपने गौर है ये बात, है ना? तो देखो एक इंसान कह रहा है कि मुझे रसूल मान लो, अल्लाह का मानने को तैयार नहीं, लकड़ी को खुदा मान रहे हैं, पत्थर को खुदा मान रहे हैं। तो क्या आपका ख्याल है कि मुशरिक भगत था? बेवकूफ नहीं था, बहुत तेज था। पत्थर को खुदा मानेगा, आदमी को रसूल नहीं मानेगा। सबब जानते हो क्या है? यानी ये जो पत्थर रखा हुआ था ना बुद्ध, अगर इसके नाम पर पुजारी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, नहीं मुल्ला, उनका मुल्ला मुझे होगा, ठीक है, ताकि बच्चे समझे कि पुजारी क्या चीज़ होती है। लेकिन हमारे माशरे में पुजारी होते नहीं है। अच्छा भाई, तो अगर वो पुजारी कहे कि इस बुद्ध ने 5 मन हलवा मांगा है, तो बुद्ध क्या करेगा? जब नहीं मांगा, कोई जबानी नहीं है, तो क्या करेगा? तो बुद्ध के नाम पर जितना चाहो मांग के खाते रहो, बुद्ध तो इनकार करने वाला नहीं है। और आदमी के नाम पे मांग नहीं सकते, लेकिन वो इनकार कर देगा। समझ आ गई बात? यानी ये जो पुजारी थे ये बेवकूफ नहीं थे, ये अकलमंद थे, यानी कैश कराना चाहते थे उसकी खामोशी को। बहुत तवज्जो रहे, ये जुमला अंडरलाइन करके ध्यान में रखना, बुतों की खामोशी को कैश कराना चाहते थे। भाई तवज्जो रहे। आज समझ में आया कि अगर 2 चीजें हो, एक नातिक और एक सामित, तो मुशरिक का मिजाज है नातिक को छोड़ दो, सामित को ले लो। किताब इधर समझ में आ रहा है? ये मौजूद आसान होता जा रहा है ना। अब बहुत दूर जाना है, और बहुत दूर जाने के लिए ये सारे मसाइल तुम्हारे सामने रखना चाह रहा हूँ। अच्छा भाई, तो अब अल्लाह का तारुफ कराया मेरे नबी ने, आराम से सुना, ये बहुत दूर जाना है, अल्लाह का तारुफ कराया। तुम्हारे बुत का कमाल की बात, तुम्हारे बुत लूले लंगड़े अंधे ऐबी, मेरा खुदा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, खशे बता। तुम्हारे बुत जाहिल, मेरा खुदा कानल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीमा। तुम्हारे ये बुत गूंगे, बोल नहीं सकते, मेरा खुदा जिस चीज में चाहे कलाम पैदा कर दे। तो पहले उनके खुदाओं की बुराई बयान की, फिर अपने खुदा की तारीफ की। यानी तबलीग में तबल्ला पहले है, तबल्ला बाद में है। आसान होते जाए हमारा है, तो फिर मैं तेजी के साथ इन मरहलों से आगे बढ़ जाऊं, ये उस्तवार हो जाए, ये सारी बुनियादें जहनों के अंदर, फिर लुत्फ़ समात है। अच्छा भाई, तो अब मेरे नबी ने उनकी बुराइयां की, ठीक, और अपने खुदा की तारीफ की। यही तो किया। कोई तो झुंझला के कहता कि मोहम्मद तुमने हमारे खुदाओं में 10 ऐब निकाले हैं, लाओ अपने खुदा के, उसमें 100 ऐब हम निकालेंगे। कोई तो कहता, यानी पैगंबर इस्लाम बुतों पर तनकीद फरमा रहे हैं। कुरान बार बार कह रहा है ये किसी काम के नहीं है, न नफा पहुंचा सकते हैं, न ज़रर पहुंचा सकते हैं। ये आजिज बुत, या बाहर बुत, ये लूले लंगड़े अंधे काने गूंगे बहरे, ये बुत ये तुम्हारे किस काम के हैं? तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, कह रहे हैं ना बार बार। अच्छा भाई, तो अरब तो वो थे जो अपनी हमीयत पर अपनी गर्दनें दे देते थे, बड़ी गैरत वाली कौम थी। तो कोई तो आके कहता कि तुम मुसलसल हमारे बुतों को बुरा कह रहे हो, लाओ अपने खुदा को, तुमने 10 ऐब निकाले हमारे बुतों में, 100 ऐब हम निकालेंगे तुम्हारे खुदा में। कहा किसी ने? लड़ना गवारा किया, मरना गवारा किया, कत्ल हो जाना गवारा किया, असीर हो जाना गवारा किया, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा भाई ये ज़बानें बंद क्यों हो गई? तो बतलाना ये था कि इतना बेऐब रसूल भेजा है कि पहले इसमें ऐब तलाश करो, फिर बाद में आओगे। ये बराई आसानी से हल हो रहा है ना। अच्छा भाई, तो अब बेऐब रसूल आया, ज़बान उसकी, कलाम अल्लाह का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आराम से सुनते जाओ, कुल हुवल्लाहु अहद। सबको ये सूरा याद है। अब मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन जी चाहता है कभी कभी जरा आए बहुत दुनी मिसल के ऐवान खूब बस मन खत्म ये हरफी बशमा हदीब कुलम कुल हुवल्लाहु अहद। आगा उर्दू खूब समझते हैं, ऐसा ना समझिएगा कि उन्हें उर्दू नहीं आती, बोलते नहीं लेकिन उर्दू खूब समझते हैं। अच्छा भाई, तर्जमा करो कुल हुवल्लाहु अहद, करो भाई, या कोई तो करे। कुल हबीब कह दे हुवा, वो अल्लाह, हुवा वो अल्लाह, अल्लाह अहद एक है। भाई अजीब मरहला फिक्र है, यहाँ पर मैं रोकूंगा। ये वो अल्लाह कौन? क्या 25 है? यहाँ पे वही केस खड़ा हो गया। कुल वो अल्लाह है, कहो कि वो अल्लाह एक है। भाई कहो कि अल्लाह एक है, ये वो अल्लाह कौन? भाई ये हुआ के फंस गया ना हालत में। भाई कुल अल्लाह है होना भी चाहिए था, ये समझाने के लिए जुमला कर रहा हूँ। नऊज़ुबिल्लाह, कोई इस्लाम मकसूद नहीं है। कहो कि अल्लाह एक है, नहीं कहो कि वो अल्लाह एक है। अच्छा भाई, अब जाओ यहाँ पे ये वो तो डिकोड हो जाए, हल हो जाए, मैं आगे बढ़ जाए। भाई मैं कसम खा के कहता हूँ इस मिंबर को किसी ने नहीं बनाया, मानोगे? खुद खुद। अच्छा, अगर मैं 100 अदद कुरान मजीद की छत पर रख के कहूँ कि इस मिंबर को किसी ने नहीं बनाया, कोई नहीं मानेगा। क्यों? इसलिए जब चीज़ है तो बनाने वाला है। या ठीक है, बात समझ में आ गई? जब चीज़ है तो बनाने वाला है। अच्छा, मैंने कहा कसम खा के कहता हूँ माइक्रोफोन किसी ने नहीं बनाया, खुद खुद है। उनके साथ कैसी बात कर रहे हैं? जब चीज़ है तो कोई बनाने वाला है। ठीक,
भाई तवज्जो है, जब वो पहला स्पुतनिक किया था ना फजाओं में, तो कहने वालों ने एक जुमला कहा था कि हम अल्लाह को ढूंढ आए, अल्लाह कायनात में नजर नहीं आया। तो ठीक है, नजर नहीं आया होगा, ठीक भाई, बहुत तवज्जो है, बहुत तवज्जो है, इसलिए बड़ी दकीक मंजिल फिक्र है। और यहाँ मैं तौहीद का बारीक सा राज हल करता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा। बड़े बड़े बददमा इस दुनिया में पाए जाते हैं जो खुदा को तस्लीम नहीं करते। अच्छा, दलील क्या है? दलील ये कि खुदा कायनात में नजर नहीं आया, इस कायनात के अंदर खुदा उन्हें नजर नहीं आया। अच्छा भाई, माइक्रोफोन बनाया नहीं बनाया? बनाने वाला होगा ना, चाहे अल्लाह को माने या ना माने, यही कहेगा कि कोई बनाने वाला है। अच्छा ठीक है भाई, ये घड़ी है मेरे हाथ के ऊपर, क्या खुद खुद बन गई? नहीं, कोई बनाने वाला है। अच्छा तो भाई घड़ी के अंदर उसके बनाने वाले को दिखला दो। क्या भाई खालिक अपनी तखलीक के अंदर नजर नहीं आता, बाहर नजर आता है? आवाज है बड़ा सलाम। समझ रहे हो बात को? खालिक अपनी तखलीक के अंदर नजर नहीं आता। अच्छा भाई, तो जब चीज है तो अल्लाह है, बताइए होगी बात। जब चीज है यानी जमीन है, आसमान है, सूरज है, चांद है, कब फेंकते हुए समंदर है, पहाड़ है, तो अल्लाह को है। चीजें है ना, जब चीज है तो कोई बनाने वाला है। अगर कुर्सी का बनाने वाला है, मिंबर का बनाने वाला है, घड़ी का बनाने वाला है, माइक्रोफोन का बनाने वाला है, तो कायनात का बनाने वाला है। तो ये किसने बताया कायनात का बनाने वाला है? तुम्हारी फितरत है। नबी ने नहीं बताया, किसने बताया? तुम्हारी फितरत है। भाई देखो, ये क्या नबी ने बताया था कि इसका माइक्रोफोन का कोई बनाने वाला है? ये तो तुम्हारी फितरत है कहा। अच्छा, मिंबर का कोई बनाने वाला क्या किसी आयत में आया कि हदीस कुरान में? नहीं भाई, तुम्हारी फितरत कह रही है, ठीक है ना। तो सूरज चाँद का बनाने वाला फितरत कह रही है, तवज्जो रखना, फितरत कह रही है कि अल्लाह है। बहुत तवज्जो है। तो जिस फितरत ने तुम्हारी हर इंसान की फितरत की बात कर रहा हूं, जिस फितरत ने कहा कि अल्लाह है, वो फितरत है हमारी उस्ताद। और उस फितरत ने बता दिया, अभी नबी की बात नहीं है, फितरत ने बता दिया कि अल्लाह है। अब कुरान ने बताया कि वो अल्लाह एक है। रुके रहना भाई, रुके रहना, इसलिए मैं बड़े दकीक मराहिल से और दकीक मसाइल से गुजार के तुम्हें यहाँ तक लाया हूँ। तो ये वो जो कहा कुल हो अल्लाह है, तो वो के मानी क्या निकले? फितरत जिसे कह चुकी है कि है वो एक, ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, इसे और समझो जरा। मैं सत्य उमूमी से, मैंने बरस यहाँ गुफ्तगू की, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा सत्य उमूमी से गलत बात हो जाए। या सुनना, माइक्रोफोन पर आवाज आ रही थी सलाह पढ़ने की या नमाज पढ़ने की, ठीक है ना। अब मुझे नहीं मालूम कि एक थे, एक से ज्यादा थे, कितने थे, कौन साथ थे, ठीक, आवाज आ रही। तो अगर सब मिलकर कहे नहीं कोई नहीं बोल रहा था, मैं नहीं मानूंगा, इसलिए आवाज तो आ रही थी, लेकिन था कौन? मैं तो बात था, तुम बताओगे तो कौन बात ये था? तो आधा इल्म है फितरत में और आधा इल्म बतलाने से आता है। फितरत ने बताया कि है, मोहम्मद ने बताया कि एक है। अब देखो, अब यहां तक तुम आ गए हो तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अच्छा भाई, तो दो है खुदा के वजूद के गवाह, खुदा की तौहीद के दो गवाह, एक खामोश कायनात, दूसरे होता हुआ मोहम्मद। या अगर इनकार करना है तो अभी कर दो, मेरे आगे बढ़ने से पहले इनकार करो, अगर कर सकते हो तो। दो गवाह है, खामोश कायनात ने बताया कि चीज है तो खालिक है, और बोलते हुए मोहम्मद ने बताया कि वो खालिक एक है। अच्छा, अब यहाँ एक मसला और करते हैं आराम आराम के साथ। उसमें दिन कितने बजे यार? बड़े तो बता रही है, तुम बता दो। 5 अव्वल कह रहा है, अव्वल तो वही। आप लोग मुतफिक हैं? मुतफिक है ना, अव्वल तो वही। अच्छा, मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करता हूँ इस बच्चे से। अव्वल वजूद खुदा, दोम तौहीद। भाई पहले ये तो तय करो कि है भी या नहीं, पहले ये तो तय करो कि वो है भी या नहीं। जब तय हो जाएगा कि है तो फिर तय करेंगे कि एक है या 25 है, ठीक है। तो अव्वल होना चाहिए वजूद खुदा, खुदा की कसम, अव्वल तौहीद, अव्वल वजूद खुदा नहीं। अगर अव्वल वजूद खुदा होता तो इस्लाम दीन फितरत न रहता। फितरत बता चुकी कि है, नबी ने कहा कि एक है। भाई बातें तो वादा होती जा रही है ना, इससे ज्यादा आज सहमत सवाल नहीं होगा। और आज मैं कुछ 5-7 दकीकों की ताखीर से आया, कल कोशिश करूंगा कि अपने सही वक्त के ऊपर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊं। तो भैया खुदा के कितने गवाह? 2 गवाह हैं। एक कायनात खामोश, दूसरे बोलता हुआ मोहम्मद। जब तक 2 ना हो गवाही पूरी ना हो। अगर तौहीद के 2 गवाह हैं, एक खामोश एक बोलता हुआ, तो मोहम्मद की नबूवत के भी 2 गवाह होंगे, एक खामोश एक बोलता हुआ। तौहीद के 2 गवाह, खामोश कुरान, भाई तवज्जो है, खामोश कायनात बोलता हुआ नबी, और नबूवत के 2 गवाह, खामोश कुरान बोलता हुआ अली।